Good morning, dear students. Today we'll be talking some general points about the processes of mitosis, meiosis, as well as few things which are related to them. Now I'm going to talk about the process of spermatogenesis. Spermatogenesis is the process by which sperms are formed in males. I told you in the previous video that the formation of sperm occurs by meiosis. So we are just going to talk about this here. So the spermatogonium, which is a diploid cell, undergoes mitosis to form another diploid cells, and further this diploid cells undergoes meiosis 1 to produce the secondary spermatocytes. And after meiosis 2, there are 4 spermatids which are formed. After differentiation, these spermatids give rise to sperm. So here you can see the process of meiosis involved in the formation of the sperm, which ensures the number of chromosomes to be reduced to half the number of chromosomes as present in the parent cell. Now, same thing occurs in the oogenesis also, that is formation of ovum. The primary oocyte after maturation undergoes this division meiosis to produce the first polar body, which is further divided into 3 new polar bodies are formed at the end of the oogenesis, and there is only one mature ovum which is capable of fertilization. Now, here at the end of meiosis, the individual gamete cell has divided from 1 cell to 4. Males produce 4 viable sperm while female produces only 1 viable egg and 3 non-functioning polar bodies. So here you can see there are different phases that I have shown here, that in the early prophase 1, what is happening here is, again, there is this compaction of the chromosomes. Chromatid से यहाँ पर chromatin material से यहाँ पर धीरे धीरे chromosomes बनना start हो रहे हैं. तो यहाँ पर प्रोफेज 1 और एंड लेट प्रोफेज तक आते आते यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, पूरे यहाँ पर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, एंड देन दे विल बी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस के अंदर पेयरिंग यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर किस तरह से ये आपस के अंदर डीएनए का एक्सचेंज के बाद यहाँ अरेंज हो रहे हैं. देन मेटाफेज के अंदर दे कम टू द मेटाफेज प्लेट, लेकिन यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से एक एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा पेयर में से, and each cell is getting only one of the chromosome. So यहाँ पर 6 chromosome से हमने start किया था, लेकिन meiosis 1 के end में हमें क्या मिल रहे हैं, 3 chromosomes, that is half the number of chromosomes in the parent cell हमें यहाँ पर मिल रहे हैं. And without any interface ये फिर से divide करेगा, and then यहाँ पर आपके पास फिर से बिल्कुल mitosis की जैसी stages होंगी, जिसमें यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं in the anaphase you will have क्रोमैटिड्स. यहाँ पर आप सिस्टोक्रोमैटिड्स को देखेंगे सेपरेट होते हुए, और सिस्टोक्रोमैटिड्स जो है मूव ऑन करेंगे टू द पोल्स, एंड धीरे धीरे यहाँ पर अगेन फिर से न्यूक्लियर, यहाँ पे डिवीजन न्यूक्लियस का कंप्लीट होने के बाद देयर विल बी द division of the cell called as cytokinesis. Now, I wanted to talk about few more things here. Like one thing I wanted to talk about is errors in meiosis. Meiosis में कुछ errors हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं जैसे पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि या तो पॉली मीन्स मेनी, प्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल से अगर ज्यादा हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी. जैसे एक्स्ट्रा 1 और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर है दैट इज पॉलीप्लॉइडी. जैसे नॉर्मल स्पर्म में 23 कैट होते हैं, इसी तरह से जो अगर ऊप्स एग्स दैट इज अगर कोई पॉलीप्लॉइडी हो रही है तो उसके अंदर 46 होंगे एंड 69. पॉलीप्लॉइड्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के सर्वाइव नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा अगर उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दे डोंट सर्वाइव. लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स का अगर हम एग्जांपल लें तो 30% फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं. ऐसे ही बात करते हैं नॉन डिसजंक्शन की. नॉन डिसजंक्शन का मतलब हो गया कि कोई एक्स्ट्रा या कोई एक क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है. इनमें से 50% जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं करते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं ट्राइसोमी का, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम. तो 21 नंबर क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम की जगह पर 3 क्रोमोसोम होते हैं, सो दैट कैन रिजल्ट इन डाउन सिंड्रोम. आपको पता है ये मेंटल रिटार्डेशन का केस है, और इसके अंदर बच्चे के अंदर प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, एंड दे आर ऑल्सो स्टेराइल. ऐसे ही ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम लीड्स टू एडवर्ड सिंड्रोम. ऐसे ही ट्राइसोमी ऑफ 13 लीड्स टू पेटोल सिंड्रोम.
ना क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जिनमें कि क्रोमोसोम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है, जैसे क्रोमोसोम का डिलीशन हो रहा है, जैसे लॉस ऑफ वन और मोर जीन हो गया कोई यहाँ पर, जैसे क्राइडू चार्ट, यहाँ पर मिसिंग जीन्स है क्रोमोसोम नंबर 5 पर, तो दैट कैन लीड टू डिजीज। देन क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज किसी किसी क्रोमोसोम के पार्ट की बन जाती है, जैसे फ्रेजाइल एक्स कहते हैं हम, जिसके अंदर एक्स्ट्रा सीजीजी सीक्वेंस आ जाते हैं, 10 to 200 लगभग लेंथ के एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस आते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। इन्वर्जन का मतलब होता है फ्लिप हो जाता है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो दोबारा से रीइंसर्ट हो जाता है वापस फ्लिप होने के बाद। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसलोकेशन, जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और उसकी वजह से देयर कैन बी प्रॉब्लम्स लाइक ल्यूकेमिया या फिर कैंसर्स कॉज हो सकते हैं। Now, out of control cell division. Now, that's also a very important part. हर चीज हमारी बॉडी में बहुत ही रेगुलेटेड मैकेनिज्म से चल रही है। हमने जितनी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी हैं, आपको अगर ध्यान होगा, हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा तो हमने पढ़ा किस तरह से एक्सक्रीशन को रेगुलेट किया जा रहा है, रेस्पिरेशन पढ़ा तो हमने पढ़ा किस तरह से रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जा रहा है। सो एवरी प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ऐसे ही सेल डिवीजन के ऊपर भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि चेक रखता है कि सेल डिवीजन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं, साइक्लिन्स हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से इंटरैक्शंस जो हैं अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाकर रखते हैं ताकि वो सेल पर चेक रख सकें कि प्रॉपर सेल डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे G1 में, इनमें डीएनए में डैमेज देखा जाता है कि अगर डीएनए में कोई डैमेज हो रहा है तो सेल अपने आप को खत्म कर लेता है। इसी तरह से एस फेज में अगर हो रहा है तो डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर चेक किया जा रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही G2 के अंदर चेक किया जाता है कि 2 फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन चुके हैं या नहीं बन चुके, क्योंकि सेल हैज टू डिवाइड, और सेल तभी डिवाइड करेगा जब उसके पास डीएनए जो है डबल अप हो चुका होगा। मेटाफेज में भी चेक पॉइंट है जहां पर चेक किया जाता है कि क्रोमोसोम्स अलाइंड हुए हैं या नहीं हुए, इक्वेटोरियल प्लेट पे करेक्टली अलाइंड है या नहीं है। So there are different checkpoints in this different phases of the cell cycle. Now, I'm going to talk about cancer also, although it's not there in the NCERT textbook, but this is an important topic that you must understand. So, cancer क्या है? कैंसर का मतलब है रिपीटेड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जैसे मैंने बताया कि सेल डिवीजन भी एक रेगुलेटेड पाथवे है हमारी बॉडी का, कि सेल डिवाइड, ऑब्वियसली पुराने सेल्स टूट रहे हैं तो नए सेल्स बन रहे हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसे ही हमारी बॉडी के वॉर्न आउट सेल्स को रिपेयर करने के लिए और पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। अब कैंसर जो है ये, इनमें कोई बैलेंस नहीं रहता है सेल डिवीजन और सेल डेथ में। सेल चेक पॉइंट्स के थ्रू जाता है तो यहाँ पर, लेकिन वहां पर प्रॉपरली उनके अंदर नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब ट्यूमर क्या है? एक अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू बन जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, तो मतलब ब्रेन में एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं। बिनाइन का मतलब क्या है, आप इसको यहां से याद रख सकते हैं, बी मतलब जहां पर रहो, यहीं पर ही, तो द वन विच इज देयर एट वन प्लेस इज कॉल्ड एज बिनाइन। लेकिन मैलिग्नेंट क्या है? जो इन्वेड करता है, जो मूव ऑन करना स्टार्ट कर देता है और सराउंडिंग टिश्यू को भी कैंसरस बनाता रहता है। This property of making the surrounding tissue malignant or cancerous is called as the metastasis. तो जैसे अब ये मेटास्टेसिस के थ्रू जो मैलिग्नेंट के जो सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो ओरिजिनल ट्यूमर से ब्रेकअप करके ब्लड या लिम्फ के थ्रू मूव ऑन करते रहेंगे और बाकी जगह पर भी कैंसर कॉज करेंगे। नेक्स्ट, कैंसर सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कैसे हैं, मैंने आपको बताया, दे हैव अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। उनकी शेप अलग होती है, उनमें वो ज्यादा राउंड शेप के होते हैं, उनमें फ्लूइड ज्यादा होता है, और कुछ के अंदर तो मल्टीपल न्यूक्लियाई भी होते हैं। एंड मेनी ऑफ देम दे आर इमॉर्टल। उनकी इंटरनल क्लॉक काम नहीं करती है क्योंकि उनके ऊपर जो चेक पॉइंट्स है वो काम नहीं करते हैं। इनमें इवन ग्रोथ फैक्टर्स भी के बिना भी डिवाइड करते रहते हैं। अब कुछ एक प्रॉपर्टी से कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं जब वो सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, लेकिन कैंसरस सेल्स ये सिर्फ डिवाइड करते रहते हैं, ये स्टॉप नहीं करते हैं डिवीजन। कैंसर क्यों होता है? कैंसर होता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, यानी रैंडम चेंजेस इन द जीन, कोई जेनेटिक चेंजेस, कोई डीएनए में वेरिएबिलिटी आ गई, तो
यहाँ पर ये लेने का मेरा पर्पज ही यही है दैट आई वांट टू टेल यू दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज द चेक पॉइंट। क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि चेक पॉइंट्स होते हैं अलग अलग डिविजन्स के ऊपर, सो दैट बिकॉज जरा सा भी एक आपने पढ़ा कि पॉलीप्लॉइडी में ह्यूमंस में सर्वाइव ही नहीं करते हैं, एक एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा है या कम है तो देयर इज hazardous diseases which are caused। ऐसे ही एक एक जीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनमें अगर थोड़ा सा भी डीएनए के अंदर चेंजेस आ रहे हैं दैट कैन लीड टू म्यूटेशंस, जिनसे कि कैंसर रिलेटेड जीन्स बन सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं दे लीड टू द कैंसर्स, जो सेल डिवीजन को एक्सेलरेट कर देते हैं, एंड उसके साथ साथ बन सकते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो नॉर्मल जीन कोड करता है फॉर प्रोटीन दैट प्रमोट द apoptosis। Mutating these genes stop cell death and promotes more cell डिवीजन, जैसे कि BRCA1 जो है ब्रेस्ट कैंसर जीन है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर कॉज होता है। कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है जिसमें कि सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड करना स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद स्टेज 2 में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है ओरिजिनल टिश्यू से दूर जाकर, एंड स्टेज 3 तक पहुंचते पहुंचते ऑर्गन्स और लिम्फ नोड्स के थ्रू अलग अलग प्लेसेस तक स्प्रेड हो जाता है, और स्टेज 4 में बहुत डिस्टेंट एरियाज तक भी पहुंच सकता है। हम डायग्नोज कैसे करते हैं कैंसर्स को, इधर बाय एक्सरेज और सीटी स्कैन्स और एमआरआईज, या फिर एंडोस्कोपी की जाती है जिसमें बायोप्सी भी की जाती है, जिसमें कि सेल का सैंपल लिया जाता है फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस जहां पर कैंसर होने के आपके चांसेस रहते हैं। माइक्रोस्कोपी टू आईडी सेल्स फ्रॉम द बायोप्सी के थ्रू किया जाता है। ब्लड सेल्स किए जाते हैं, WBC ट्यूमर मार्कर्स और प्रोटीन्स की चेकिंग की जाती है। ट्रीटमेंट जो है कैंसर का इधर सर्जिकल रिमूवल हो सकता है सर्जरी के थ्रू, और इट कैन बी केमोथेरेपी, इंट्रावेनस मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें कि सेल डिवीजन को स्टॉप करने के लिए, और देयर कैन बी रेडिएशन थेरेपी जिसमें कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स दिए जाते हैं टू किल द ट्यूमर सेल्स। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।